Hello students, we have started the nanochemistry, and in that we have seen in the previous lecture we have seen about the characteristic analysis or characterization of nanoparticles that are formed, and we also have seen about the ancient history of the nanotechnology or the nanomaterial or the nanoparticle. Now in this period we are going to see the applications of nanomaterials. Students, we are in the first lecture about the green chemistry, about the green chemistry or the nanotechnology. We have seen that the nanoparticles are very small in size, and therefore since these are very small in size, therefore their volume देर और दैट सरफेस एरिया हमने उसका सरफेस एरिया कंसिडर किया, तो एज कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम द सरफेस एरिया is so large or the it is increase, and the surface due to that these nanoparticles have different applications in the different field, that is in the physical or the chemical or the optical structure of the nanoparticles is different one. Their catalytic properties are also very important and different one, and therefore there are number of applications are there of the nanoparticles are seen in the different area of the science or the technology. The few applications we are going to see here. Since the nanoparticles have cleaner, lighter, they have cleaner, lighter and smarter surfaces. Therefore, first of all, we have seen they have very nice or cleaner surfaces. These are used in the scratch proof eyeglasses. These are used in the scratch proof eyeglasses, or these are used in the transport. These are also used in the sunscreens in the we do use in the our day to day life, or these are also used in the paints. It makes the crack resistant paint. These are the different applications in the different field. Also in the field of electronics, the nanotechnology is used, that is it is used in the electronic devices, that is it is used in the MRAM, that is the मैग्नेटो रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो इसमें इसका यूज़ हो जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज इज नैनो पार्टिकल इज इन द water purification. We know that the most of the disease in the human beings are seen due to the water disinfectant water, or the water is not safe for the drinking because it contains many waterborne viruses or the bacteria. Okay, therefore this is not safe for drinking water for the human being, and therefore for safe drinking water, again it should also be cost effective. It should also be cost effective, that is the cost effective filtering material should be there, and it is due to the only about due to the nano technology it is possible, because the silver coated filters are used. Okay, the silver coated filters of the silver coating it is of the nanoparticles. Therefore it of course it is the cost effective, that is इसका cost कम हो जाता है, तो it becomes a cost effective. तो जो silver nanoparticles है they are used in the these filters, and this kills the bacteria, or this is the bacterial disinfectant. Okay, these silver particles, nanoparticles are bacterial disinfectant, and it removes the E. coli bacteria from the water, and thus the water get purified. The next thing is about the सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स. ओके, तो सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स में नैनो पार्टिकल्स बहुत यूज हो जाते हैं. तो जो सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल है इसमें जो हमारे नेचर का एग्जाम्पल देख लिया, तो जो लोटस के लीव्स रहते हैं कमल, that is the lotus, the leaves of lotus are super hydrophobic, means these leaves are they have the phobia फॉर द वाटर पार्टिकल्स, मीन्स उसके ऊपर जो लीव्स है लोटस के उसके ऊपर पानी नहीं रुकता है, हमें पता है. दीज आर द सुपर हाइड्रोफोबिक इन
नेचर दिस लीव्स आर। तो जो है वो दैट इज मीन्स इट रिपेल द वाटर, इट रिपेल्स वाटर। एंड जब ये वाटर को रिपेल करते हैं तो उसके साथ साथ वो जो कैरीज करता है वाटर, उसमें डर्ट, उसको भी रिपेल करते हैं। इसीलिए जो लोटस के लीव्स है हमेशा हमेशा वो लीव्स हमें जो दिखते हैं वो हमेशा हमें क्लीन दिखते हैं। तो जो स्फेरिकल सरफेस अभी इसका ये जो टेक्निक है इट इज़ यूज इन द सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़। दिस सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़ में ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल टेक्निक जो है वो सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़ में यूज़ होता है। तो इसमें क्या है सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़ में इसमें जो है वेनेडियम डाइऑक्साइड का मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जो वेनेडियम डाइऑक्साइड का मटेरियल है उसके जो नैनो पार्टिकल है दिस एक्ट्स एज अ सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल। तो जो सेल्फ क्लीनिंग और जिसका जो सरफेस रहता है स्पेरिकल सरफेस रहता है ऑफ रेन वाटर। तो रेन वाटर का सरफेस कैसे रहता है, इट इज़ अ स्पेरिकल। और उसके साथ साथ डस्ट भी आता है, डर्ट भी आता है, एज जो विंडोज़ से स्लाइड्स हो जाता है, जो वाटर रहता है वो विंडोज़ से स्लाइड हो जाता है। तो विंडोज़ पे ऑलरेडी भी डस्ट और या डर्ट रहता ही है। तो अभी ये स्पेरिकल पार्टिकल क्या करते हैं, जो स्पेरिकल पार्टिकल्स है वेनेडियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, तो ये जो नैनो पार्टिकल्स है वो इसको जब निकल जाते हैं नीचे आ जाते हैं, रुकते नहीं वो सरफेस पे विंडोज़ के, तो उसके साथ साथ वो जो है डस्ट और डर्ट भी निकल जाता है, वो स्लाइड हो जाता है। दस दिस पार्टिकल्स दिस वेनेडियम डाइऑक्साइड पर नैनो पार्टिकल्स आज आर यूज इन द सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़। एंड इट इज़ जो है इट इज़ द अल्ट्रा रेजिस्टेंस टू वाटर। जो ये नैनो पार्टिकल्स है वेनेडियम डाइऑक्साइड के, इट इज़ अल्ट्रा रेजिस्टेंस टू वाटर, यानी कि वो रेजिस्ट करता है वाटर को। देयरफॉर इन अ कन्वेंशनल ग्लास मार्क्स जो हमारे विंडोज़ रहते हैं हमेशा के सिंपल वाले, जिसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं रहता है वेनेडियम डाइऑक्साइड का, तो इन जो कन्वेंशनल हमारे जो ग्लास रहते हैं उसके ऊपर पानी डाल दिया हमने तो पीछे कुछ मार्क्स छूट जाते हैं, हमें ऐसे दिखते हैं गंदे गंदे कुछ ऐसे मार्क्स वगैरह दिखते हैं डस्ट के या फिर डर्ट के। तो ये सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़ में ये मार्क नहीं दिखते हैं हमें, because these are coated with the vanadium dioxide nanoparticles, and that these vanadium dioxide nanoparticles are ultra resistant to water. Therefore thus here the nanotechnology is used. Now these are different uses in the of nanotechnology in the different field. Now we will see the advantages of nanotechnology. तो जो advantages है nanotechnology के, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट थिंग है तो इट इज़ रिवोल्यूशन, इट मेक्स द रिवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स जो मटेरियल है डिवाइसेस है या फिर कंप्यूटिंग मटेरियल डिवाइसेस है उसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आ गया है। बहुत अच्छे अच्छे कुछ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बींग के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस हो गई है। द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल इज़ अबाउट द एनर्जी सेक्टर। ओके, तो हमारा जो एनर्जी सेक्टर है ड्यू टू द नैनो टेक्नोलॉजी सोलर पावर जो है, हम जो सोलर मटेरियल यूज़ करते हैं, सोलर पावर यूज़ करते हैं हमें, वो ज़्यादा मोर इकोनॉमिकल हो गया है ड्यू टू द नैनो पार्टिकल्स और द नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, तो जो ये उसकी जो बैटरी रहती है वो अभी मोर इफ़िशिएंट बन गई है ड्यू टू द नैनो पार्टिकल्स और द नैनो टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इज़ अबाउट द मेडिकल फील्ड। तो हमारा मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा योगदान बोलेंगे हम है। तो जो डिफरेंट ड्रग्स है, तो ड्यू टू द नैनो केमिस्ट्री वी कैन प्रिपेयर द वेरी स्मार्ट और गुड ड्रग्स, एंड देयरफॉर दिस नैनो ड्रग्स है तो वो नैनो पार्टिकल्स एकदम अच्छे से एक्ट होते हैं हमारे बॉडी में, और इट क्यूअर्स फास्टर, and there are no side effect of the these drugs, or by the way we are injecting the drugs in the human body,
और जो डिफरेंट डिसीजेस है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन्स आ गई है मार्केट में ड्यू टू द नैनो केमिस्ट्री वी कैन से। द कैंसर जैसे जो डिसीजेस है या फिर डायबिटीज जैसे डिसीजेस है उसके लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी बिकम्स वेरी important in this case. So these are the different advantages of nanotechnology, but we also have seen despite the possibilities and the advantages or the advancement that the nanotechnology offer to the world के लिए नैनो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट टेक्निक्स दिए हैं, but there are certain potential risk also involves, that is there are also some different disadvantages are also seen about the nanotechnology. कोई भी साइंस का जो भी कोई हम देखते हैं कुछ कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट जो प्रपोज करते हैं उनकी थियरीज़ वगैरह उनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब हम देखते हैं टीवी या कंप्यूटर या मोबाइल। तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो वैसे ही नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन साथ में वो डिसएडवांटेजेस के साथ ही कौन सा भी साइंस आता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नैनो टेक्नोलॉजी से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है, बट at the same time it has increased the pollution, right? It increases the pollution. नैनो टेक्नोलॉजी से पोल्यूशन कैसे बढ़ता है? तो जो नैनो पार्टिकल्स है उसका साइज़ बहुत छोटा है, तो एकदम फाइन है, तो वो एयर में आ गए तो उससे एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। वो आते ही है एयर में, उससे एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है और उसे हम बोलते हैं नैनो पोल्यूशन। वो एयर पोल्यूशन की नैनो पार्टिकल्स की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं नैनो पोल्यूशन। एंड नैनो पोल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. It is really very dangerous for living organism because since as we inhale the these nanoparticles or the nanomaterial, and that can be deposited in the respiratory tract. तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये जो नैनो मटेरियल्स है डिपॉजिट हो जाता है और उसके बाद वो इट एंटर्स इन आवर लंग्स. ओके, देन वो लंग्स में एंटर करता है और उससे हमारे लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं. दस दिस इज़ द वेरी वेरी बैड डिसएडवांटेज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स और द नैनो टेक्नोलॉजी. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो particles that are relevant for the health effects are size, chemical composition and the shape. तो जो नैनो पार्टिकल्स का शेप है, साइज़ है या केमिकल कॉम्पोजिशन है, उससे हमें बहुत फ़ायदा ही हुआ है. तो जो डिसएडवांटेजेस कम करने के लिए हमें खुद ही प्रिकॉशन लेनी है. ओके, thus we have completed here our chapter, and in the next video lecture we'll start the new chapter. Okay, bye. Thank you.